हाँ, क्या डाउट पूछा बेटा आपने? मैम इमीडिएट परस्यूट। इमीडिएट परस्यूट, इमीडिएट परस्यूट होता है जैसे आपके घर में चोरी करने आई और मैंने सामान चुरा कर अपने पास लिया और आई एम इन द ऑर्डर ऑफ टेकिंग इट आउटसाइड होम। आपकी नींद खुल गई तो आपने मुझे देखा कि मैं वहां से निकल रही हूँ, आपने मेरे पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया। ये होता है इमीडिएट परस्यूट, जब कोई गैप नहीं है। ठीक है बेटा, यस मैम। ये होता है बेटा। हाँ जी, कुछ और पूछना है आपने? कुछ और पूछना है? नो मैम। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए बेटा, नेक्स्ट लिखिए। अभी हमने किया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट लिखिए, सेकेंड पार्ट लिखिए। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, right of private defense is also available, is also available against person, against person who is incapable, who is incapable of committing offense, who is incapable of committing offense. For example, unsound mind person, unsound mind person, ब्रैकेट में लिख लीजिए सेक्शन 84। अनसाउंड माइंड पर्सन ब्रैकेट में लिख लीजिए सेक्शन 84, या फिर माइनर, माइनर साथ में लिखिए सेक्शन 82, 83, सेक्शन 82, 83। नेक्स्ट लिखिए इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन सेक्शन 85, 86, सेक्शन 85, 86 एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ये आपका है सेक्शन 98, ये आपका है सेक्शन 98, सेक्शन 98। रोहित रीड करना बेटा सेक्शन 98, 98 रीड करो। Yes, ma'am. 98. Right of private defense against the act of a person of unsound mind, etc. When an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth. Yes, underline कीजिए youth, want of maturity of understanding, ये आपका youth वाला 82 है, want of maturity of understanding 83 है, unsoundness of mind 84 है, intoxication of person 85, 86 है, misconception on the part of that person ये mistake of fact है। आगे रीड कर बेटा। Every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense. चाहे the person who is committing the offense is not capable of committing it, उसको शायद कोई कन्विक्शन भी ना हो, एक्विटल हो, पर जिसको वो अटैक कर रहा है उसका उसको वैसा ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा जो कि होता अगर जो करने वाला ऑफेंस कर रहा होता। तो ये प्ली दैट द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, ये कोई भी ये वाला जो राइट है ये रिस्ट्रिक्ट नहीं होता by this plea, even if the person who is committing the offense is incapable of committing it, the same right of private defense would be available to the other person. बेटा इसका illustration A read करो, illustration A read करो। Z, under the influence of madness, attempts to kill A. Z is guilty of no offense, but A has the same right of private defense which he would have if Z were sane. बेटा illustration B read करो। A enters by night a house which he is legally entitled to enter. Z, in good faith, taking A for a housebreaker, attacks A.
here Z by attacking A under this misconception commits no offense. मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसको अवेलेबल होगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसको अवेलेबल होगा। नेक्स्ट लिखिए बेटा, लिमिटेशंस। सेक्शन 99 सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो सेक्शन 99 है इट इज गवर्निंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। दिस सेक्शन इज गवर्निंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बेटा बेयर एक्ट में रेफर करो और हेडिंग डाल दीजिए लिमिटेशंस ऑन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, लिमिटेशंस ऑन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बेटा रीड कर सेक्शन 99। Yes, ma'am. Acts against which there is no right of private defense. There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law. अंडरलाइन There कर is- दीजिए पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। आगे There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of a public servant acting in good faith under color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law. इसमें अंडरलाइन कीजिए डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। आगे There is no right of private defense in cases in which there is time to have recourse to the protection of the public authorities. बेटा इसमें आप अंडरलाइन कीजिए टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। अंडरलाइन कीजिए टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। आगे रीड कर बेटा। Extent to which the right may be exercised. The right of private defense in no case extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense. बेटा ये प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल है, ये फोर्थ लिमिटेशन है प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल। प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जो आपको एप्रीहेंशन है डेंजर की और जो हार्म कॉज्ड है दोनों प्रोपोर्शनल होने चाहिए। अगर आपको खतरा 1% है और आप हार्म इन्फ्लिक्ट कर रहे हो 99%, दैट वुड नॉट बी जस्टिफाइड बाय लॉ। तो आपने देखना है, अब हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल मैथमेटिकल इक्वेशन होनी चाहिए, पर फिर भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। हार्म कॉज्ड मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द एप्रीहेंशन जो भी उस आदमी को था। आगे रीड कर बेटा एक्सप्लेनेशन 1। Explanation 1. A person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by a public servant as such unless he knows or has reason to believe that the person doing that act is such public servant. अब जो आपकी Explanation एक्सप्लेनेशन 2. 1 है, जो आपकी एक्सप्लेनेशन 1 है उसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि जो पर्सन है he will not be deprived of right of private defense unless and until उसको नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है कि जो आदमी ये एक्ट कर रहे हैं he is a public servant। मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए, हाउ अ पर्सन विल नो दैट अ पर्सन कंसर्न्ड इज अ पब्लिक सर्वेंट? आंसर कीजिए बेटा, हाउ अ पर्सन will know that the person who is posing threat to property or body, that person is a public servant. How that person will come to know? या तो मैम कोई उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे जो अथॉरिटी ने हायर अथॉरिटी ने दिए होंगे, या वो ड्रेसेस वगैरह में होगा। ओके मैम पब्लिक सर्वेंट को खुद एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आप अब मुझे बताइए, अब यहाँ पर पुलिस चलान कर रही है मास्क के या ट्रैफिक वॉलेशन के, क्या आप उनसे पहले कहते हैं आप अपना पहले अपॉइंटमेंट लेटर दिखा दो, आप पब्लिक सर्वेंट हो या नहीं हो? मैम ड्रेस है ना। यस, हाँ जी। Yes. सीआरपीसी में कोई प्रोविजन है ऐसा? मैम आई थिंक ड्रेस ही होती है जब कोई ड्यूटी पे होता है तो ड्रेसेस में होंगे। सिविल बेटा जब भी कोई आपने अरेस्ट करना है
तो वहां पर है जो लोग हैं दे शुड बी इन देयर ड्रेस। आप स्टार से उनके यूनिफॉर्म पर नेम होता है, स्टार्स होते हैं, आप डेजिग्नेशन मेकआउट कर सकते हैं। तो सीआरपीसी में भी इसके लिए प्रोविजंस हैं। हाँ जी बेटा बट नेक्स्ट। मैम सिविल ड्रेस में भी तो आते हैं कई बार, जो सीआईए स्टाफ वगैरह होते हैं। बेटा जब आपने कहा स्टाफ, तो उनके पास फिर डॉक्यूमेंट होता है। आप ऐसे विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर सर्च वारंट है, तो अगर आपके पास सर्च वारंट है फॉर एग्जाम्पल, अब जो रेवेन्यू ऑफिसर्स जब रेड करते हैं, उनका ऐसा कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म नहीं है जब इनकम टैक्स की रेड होती है या एक्साइज वालों की रेड होती है, बट यस, पर उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं विच आर मैंडेटरी। तो आपके पास कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, या आपका यूनिफॉर्म या अपना इम्प्लाइड आप बताते हैं कि क्या आप किस डेजिग्नेशन है, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। अदरवाइज आपका जो डॉक्यूमेंट्स है दे आर मस्ट, दे आर मस्ट। ठीक है प्लीज, ठीक है बेटा। यस मैम, यस मैम। हाँ बेटा मैम नेक्स्ट। इस लाइन का मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन 2 में जो unless he knows or has a reason to believe that the person. बेटा अब लिखा है अनलेस ही नोज हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज सच पब्लिक सर्वेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा एक पुलिस वाला आया जिसने यूनिफॉर्म नहीं डाली हुई थी और आदमी को पता नहीं लगा, और उसने हस्बैंड को ड्रैग करना स्टार्ट कर दिया। वाइफ को लगा कि कोई ट्रेसपासर है जो उनको डेंजर पोज कर रहे, वाइफ ने उसे लाठी से मारना स्टार्ट कर दिया। अब इस केस में, अब फॉर एग्जाम्पल ये एक रियल केस है जहां पर एक पुलिस वाला आया पर उसका कोई यूनिफॉर्म नहीं था। तो वाइफ से पूछा हस्बैंड का है, वाइफ ने कहा हस्बैंड अभी घर पर नहीं है, आप कुछ टाइम के बाद आइए। पर जो हस्बैंड, जो वो पर्सन कंसर्न था, उसने वाइफ के साथ जो बिहेवियर है दैट इज नॉट एज पर द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। और उसका जो ह्यू एंड क्राई सुनकर जो नेबर है वो आया और उसने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी पुलिस वाले की। अब क्वेश्चन अराइज होगा, क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? इसमें बिल्कुल है। वो क्यों? बिकॉज जब उसने गया, द पर्सन जिसको वो सोच रहा है, द पर्सन हैविंग रीजनेबल एप्रीहेंशन, ही इज नॉट हैविंग नॉलेज और रीजन टू बिलीव कि वो पब्लिक सर्वेंट है। ऑन द ऑपोजिट, अगर वो पुलिस यूनिफॉर्म में है और वो इंटेरोगेट कर रहे हैं और तब आप उसकी पिटाई कर रहे हैं, देन दैट वे, यहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। यहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है प्लीज, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. यस Yes. अब बेटा एक्सप्लेनेशन 2 रीड करना रोहित। A person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by the direction of a public servant unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is acting by such direction, or unless such person states the authority under which he acts, or if he has authority in writing unless he produces such authority if demanded. ओके बेटा आप ना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट ब्रीफ में लिखिए। मैं आपको हेडिंग्स बोल रही हूँ और उसकी क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिखिए, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। नो आरओपीडी अगेंस्ट एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। नो आरओपीडी अगेंस्ट एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इसमें लिखिए कंडीशंस। victim of offense was a public servant. Victim of offense was a public servant. Second, fact known to accused. Fact known to accused. Third, public servant acting. Public servant acting under his color of office. Public servant acting under his color of office. Fourth, public servant acting in good faith. Public servant acting in good faith.
नेक्स्ट लिमिटेशंस लिखिए, इसके अंडर क्या लिमिटेशंस है, किस एक्ट में ये वाला जो डिफेंस है वो अवेलेबल नहीं होगा। फर्स्ट, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट फ्रॉम एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट फ्रॉम एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट फ्रॉम एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। सेकेंड लिमिटेशन लिखिए, एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज apparently illegal, एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज apparently illegal। हाँ जी, आप अब मुझे बता दीजिए, एक केस में जो पुलिस ऑफिसर है जो खुद विक्टिम है, मैम दोबारा बोलना, एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज apparently illegal, apparently illegal। ओके मैम। यस, हाँ जी, फैक्ट सुनिए और आंसर कीजिए। पुलिस ऑफिसर है, वो मिस्टर ए के घर गया टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी विदाउट सर्च वारंट। जो मिस्टर ए की वाइफ थी, शी वॉज लोनली एट होम and due to hue and cry by the wife, neighbor gave serious blow to the police officer। अब आप बताइए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल था या नहीं था एंड वाई? रीजन बताना है बेटा, साथ में बताइए बेटा। मैम ये फैक्ट्स में ये है कि वो ड्रेस में था या नहीं? कैजुअल में बेटा, कैजुअल्स। नहीं था मैम, जस्ट मिलेगा मैम, मैम मिलेगा। मे बी मिलेगा मैम। रीजन बताइए क्यों? मैम हो सकता है प्रॉपर्टी ऐसी है वाइफ के नोन में है और वो उसको हिडन भी कर सकती है, ऐसा कुछ। और बेटा तो यहाँ पर जो एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट है, दैट इज apparently illegal in nature, और इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वुड बी अवेलेबल इवन जहां पर पब्लिक सर्वेंट है, बिकॉज एक्ट इज apparently illegal। वो अपने अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस एक्ट तो कर रहा था, बट नॉट इन अ प्रॉपर मैनर, लीगल मैनर में नहीं, और इसलिए उन्होंने कहा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लेडी को अवेलेबल होगा। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए। इन द मिडल ऑफ नाइट जो पुलिस पार्टी है, उन्होंने दे ट्राइड टू एंटर द हाउस बाय स्केलिंग वॉल्स। इसका मतलब 5-6 पुलिस वाले जाकर घर की दीवारों पर चढ़ना शुरू कर दिया अंदर एंट्री लेने के लिए, और जो ओनर था उसको पता चल गया, जो वहां पर आदमी था, कि कोई वॉल पर स्केल कर रहे एंड समवन इज ट्राइंग टू एंटर द हाउस। उसने क्या करा, वो रूफ टॉप पर गया और उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी इन एयर, जिसकी वजह से एक कांस्टेबल की डेथ हो गई। हाँ जी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वुड बी अवेलेबल टू दैट पर्सन और नॉट? यस मैम, यस मैम। मैम आपको सो ब्रांचेस में होंगे। हाँ जी, अखिल बताओ बेटा, अखिल बताओ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है या नहीं है? बलराज सर, आपने सुन लिया क्वेश्चन? जी मैम। हाँ जी, बताइए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा या नहीं, और क्यों? नहीं होगा, नहीं होगा मैम, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 10-12 थे, उनको फायरिंग नहीं कर सकता, उन्हें टोक भी सकता, रोक भी सकता था, क्योंकि इतना तो बड़ा अपराध नहीं किया उन्होंने, अंदर भी एंटर नहीं हुए थे वो। अच्छा, आप बता दीजिए, आप घर में अपनी फैमिली के साथ हैं और 10-12 लोग
घर की छत पर चढ़ने के लिए दीवारों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। एक्टिविटी से पता चल जाता है आपको कि ग्रुप ऑफ पर्सन दे आर ट्राइंग टू एंटर द हाउस। आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, आप बता दीजिए। मैम ड्रेसेस में नहीं थे वो? यस, ड्रेसेस में नहीं थे क्या जो पर्सन थे? नहीं थे बेटा। अगर उसको एक फैक्ट पता Then- होता कि वो मैम, मेरा राइट है, देन मेरा राइट है। मैम बेटा, मिलेगा हाउस ब्रेकिंग बाय मैम नाइट ड्रेस में होती डेथ भी तो कॉज भी कर illegal सकते था। हैं। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिकॉज अब डेथ यहाँ भी पर कॉज कर सकते the हैं। fact that the person concerned were public servant, this fact was not known to the person concerned, therefore they will be covered by the explanation। उनको right of private defense available होगा। बेटा मैम नेक्स्ट। ऐसा ही एक क्वेश्चन था मैम, हरियाणा में ना जैसे बिजली वाले नहीं थे मैम, एक बार हुआ था, उनको मार दिया था एक, मारने के बाद उसको अंदर खींच के लिया लेना पड़ा उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर घर में वकील था एक, बोला अंदर ले लो एक ने, नहीं तो हम फंस जाएंगे इसमें। तो बाहर मारे थे ना मैम उन्होंने, क्योंकि वो गली में थे, कोई जरूरी नहीं था वो चढ़ रहे थे, एक ने देखा, कोई एक नहीं था मैम। ये हरियाणा में बिजली बोर्ड में हुआ था ये एक केस। ये सर, जब क्योंकि हम कह रहे हैं हर एक केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस में अगर माइन्यूट सा भी डिफरेंस हो जाए तो जजमेंट चेंज हो जाएगी, जी मैम। जजमेंट चेंज हो जाएगी। तो ये तो एक पर्टिकुलर केस था जिसमें हम ये पर्टिकुलर जजमेंट आया। बात कहने का ये है कि अगर where the act of public servant is apparently illegal, जी, right जी। of private defense would be available to the person even against the public servant. If the fact that the person concerned is a public servant is not known to the person, then also he could exercise his right of private defense even against the public servant। ठीक है सर? यस, जी मैम। सिर्फ ये प्रिंसिपल की बात है सर। नेक्स्ट जी देखिए, नेक्स्ट देखिए। नो आरओपीडी, नो आरओपीडी against act of person, no ROPD against act of person who is acting on directions of public servant, who is acting on direction of public servant। बेटा कंडीशंस लिख लीजिए, कंडीशंस लिख लीजिए। फर्स्ट, acting on direction of public servant, acting on direction of public servant। Second, direction given under color of office, direction given under color of office। Third, known to others that he is a public servant, known to others that he is a public servant। Last, directions given in good faith, directions given in good faith। नेक्स्ट लिखिए, थर्ड लिमिटेशन लिखिए। नो आरओपीडी, नो आरओपीडी where person, no ROPD where person can obtain protection of public authorities। No ROPD where person can obtain protection from public authorities। कंडीशंस लिखिए, कंडीशंस लिखिए। यस बोलिए मैम ये लिमिट का क्या मतलब हुआ? बेटा। नो आरओपीडी, नो आरओपीडी where person can obtain, no ROPD where person can obtain protection from public authorities, protection from public authorities। बेटा पर ये डिफेंस एब्सोल्यूट नहीं है कि ये वाला कहना कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। इसके साथ जब हम रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं उसके साथ कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। फर्स्ट लिखिए, रीजनेबल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन
reasonable and reliable information of apprehending danger of an offense. Second लिखिए, safe, dignified and reasonable opportunity, safe, dignified and reasonable opportunity of approaching the public authorities, Third, person could have maintained status quo, by availing that protection. Fourth, proximity of public authorities to provide protection. Proximity of public authorities to provide protection. Last, fifth, effectiveness of protection that could have been provided by public authorities. रोहित एक बार बेटा कंडीशंस रीड करना. साक्षी आपका साउंड ना बड़ा वेवी आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा. प्लीज आप मैसेज सेंड कर अपना मैसेज कन्वे कर दीजिए. रोहित रोहित एक बार प्लीज पॉइंट्स रीड करना, जो कि नो आरओपीडी इन केस ऑफ रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज के बेटा पॉइंट्स रीड करना एक बार. Yes, ma'am. No ROPD where person can obtain protection of public authorities. Yes, आगे. First, reasonable and reliable information of apprehending danger of an offense. Yes. Second, safe, dignified, and reasonable opportunity of approaching the public authorities. Yes. Third, person could have maintained status quo by availing that protection. Fourth, proximity of public authorities to provide protection. Fifth, effectiveness of protection that could have been provided by public authorities. बेटा नेक्स्ट लिखिए. फोर्थ लाइन में क्या बोला मैम आपने? फोर्थ है बेटा, proximity of public authorities to provide protection. नहीं मैम, फर्स्ट नो आरओपीडी वेयर पर्सन कैन ऑब्टेन प्रोटेक्शन फ्रॉम public authorities. Okay. नेक्स्ट लिखिए बेटा. नेक्स्ट लिखिए. फोर्थ लिमिटेशन लिखिए. A person cannot cause more harm than was necessary to protect the harm. A person cannot cause more harm than was necessary to protect the harm. बेटा इसके पॉइंट्स लिखिए. फर्स्ट, proportion between danger to be averted and offense committed. Proportion between danger to be averted and offense committed. Second, ROPD cannot be used as a right of offense. Third, person must not exceed
person must not exceed limitations necessary to meet the challenge. Fourth, however law will grant marginal concessions to human sentiments. इसका ये मतलब हुआ, जब आदमी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में होता है तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटी को मेजर नहीं कर सकता, बट यस वहां पर हम कहते हैं 10-20% ऊपर नीचे हो जाए तो ठीक है, लॉ इसको इग्नोर नहीं करेगा, बट यस पर अगर आपको एप्रीहेंशन है 1% और आप चोट पहुंचा रहे हैं 100%, लॉ इसको इग्नोर नहीं कर सकता, फिर आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है प्लीज, ठीक है बेटा। यस मैम। नेक्स्ट लिखिए, अभी तक जो आपने की, दीज आर लेजिस्लेटिव लिमिटेशंस, ये सारी लिमिटेशंस आपके बेयर एक्ट में प्रोवाइडेड थी। नेक्स्ट लिखिए, लिमिटेशन क्रिएटेड बाय जुडिशरी, ये जुडिशियल क्रिएशन है। इट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशरी कि इस केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। आप लिख लीजिए नो आरओपीडी। बेटा रीजन आपने बताना है, क्योंकि हम एक्सेप्शन में जो मर्डर की एक्सेप्शंस थी वहां पर हमने सडन फाइट का एक्सेप्शन किया है, तो रीजन आपने बताना है। नो आरओपीडी अवेलेबल in case of free fight। हाँ जी, रीजन बताइए। मैम इंटेंशन नहीं होता फ्री फाइट में। होता क्या है फ्री फाइट? मैम ऐसे ही दो इंसानों में कहीं किसी बात पे झगड़ा हो जाए। ओके बेटा, आपने कभी देखा है कि कंटेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो कि इलीगल होते हैं फ्री फाइट्स के लिए? ये एक टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हुआ है कि एक रेसलर था, उसने चैलेंज थ्रो किया कि अगर किसी में हिम्मत है तो फलाना दिन फलाना टाइम पर आकर लड़ो, रिवॉर्ड भी होता है। और वो वहां पर जो स्टूडेंट सेंटर का जो नीचे का जो एरिया है वहां पर उसने चैलेंज थ्रो किया था, ओपन चैलेंज। ये फ्री फाइट है। हाँ जी, क्यों राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है इन केसेस में? मैम खुद सिलेक्ट कर रहा है, अगर वहां पर कोई वो चैलेंज करते हैं और हम उसको सिलेक्ट कर तो रहे हैं ना कि हमें पता है वी एंटर दिस फाइट वी विल बी हार्म। बेटा फिर तो इस डिफेंस चैलेंज के अंदर मैम उसने कंसेंट दे दी ना टू हार्म। कह रही हूँ, फिर तो इस डिफेंस की जरूरत क्या थी? फिर तो वो डिफेंस ऑफ कंसेंट में ही ना चला जाता। केस सुनिए, सिविल डिस्प्यूट था पार्टीज के बीच में, और डिस्प्यूट की वजह से जो दोनों पार्टीज हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को अटेंड करने जा रही थी। तो रास्ते में क्या हुआ, बस स्टैंड पर दोनों में ऑल्टरकेशन हो गई और दोनों पार्टीज ने आपस में एक दूसरे को मार पिटाई करना स्टार्ट कर दिया और लोग भी मर गए। हाँ जी, क्या इनमें से किसी को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा या नहीं? मैम रिपीट करोगे एक बार? सिविल डिस्प्यूट था बेटा प्रॉपर्टी को लेकर, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करने के लिए दोनों ही पार्टीज
जा रही थी, बस स्टैंड पर दोनों पार्टीज के बीच में ऑल्टरकेशन हो गया। आर्गुमेंट से स्टार्ट होता है, जो लड़ाई झगड़े में बदल गया, और इस लड़ाई झगड़े में एक पार्टी के कुछ लोग मर भी गए। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इस केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है या नहीं है, और क्यों? मैम दोनों ही पार्टियां लड़ रही हैं, तो एक दूसरे को लगेगा एकदम अचानक से ma'am. लड़ाई होती है। हरलीन रीजन बता दे बेटा, क्यों राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है, रीजन बता बेटा। मैम बिकॉज नो लिमिटेशन क्रिएटेड बाय जुडिशरी कवर हो जाएगा उसमें। जुडिशरी ने क्यों लिमिटेशन ये क्रिएट किया, रीजन? मैम बहुत पार्टी अचानक लड़ने लग जाती हैं, तो वो तो एक दूसरे को लगेगा, अगर वो एक दूसरे मैम अपने टू प्रिवेंट वायलेंस इन फ्यूचर, ऐसे तो कोई भी प्राइवेट बेटा इसका डिफेंस रीजन है, when both the parties they are acting to utter disregard to law, then let them suffer, let them suffer। लॉ उनमें से किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज दोनों ही अनरीजनेबल मैनर में बिहेव कर रहे हैं। इन केस ऑफ फ्री फाइट तो दोनों को ही सफर करने दो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा when parties are acting indifferent to legal system। क्लियर है प्लीज, क्लियर है प्लीज? रीजन लिख लीजिए। इन केस ऑफ फ्री फाइट, in case of free fight, both the parties are acting with utter disregard to law, with utter disregard to law, then let them suffer, then let them suffer। when parties are indifferent, when parties are indifferent to legal system, when parties are indifferent to legal system, then law will not come to their rescue, then law too will not come to their rescue। इसलिए फ्री फाइट के केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर है प्लीज? मैम इसमें अगर इंटेंशन प्रूव कर दे कि एक पार्टी ने जानबूझ के किया, फिर मिल जाएगा? बेटा फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा, यस वो तो आपके फिर एविडेंस के ऊपर है। अगर वो फ्री फाइट का केस नहीं है, वो इंटेंशनल है, आपने उसको प्रोवोक किया है टू इंडल्ज इनटू सच फाइट, फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है प्लीज? ओके मैम। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। मैम फिर हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा या मिलेगा, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि सामने वाली पार्टी ने जानबूझ के हमें प्रोवोक किया? बेटा यहां पर अगर पार्टी ने प्रूव किया कि फिर मिलेगा, मिलेगा, फिर मिलेगा, Okay. मिलेगा बेटा। अगर वो ठीक है। इंटेंशनल प्रूव कर दिया, फिर तो दूसरी पार्टी डिफेंड कर सकती है ना इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तब उसको Yes. मिलेगा। हम वो लिमिटेशंस कर रहे हैं जहां नहीं मिलेगा, सॉरी मैंने पहले मुझे लगता है मैंने कह दिया था नहीं मिलेगा, मिलेगा तब मिलेगा। क्लियर है प्लीज? Okay. यस। नेक्स्ट लिखिए, जी। नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन ही लिख लीजिए। कैन ROPD extends to causing risk of harm, to causing risk of harm to innocent persons, to innocent persons? आगे लिख लीजिए सेक्शन 106, सेक्शन 106, ये 106 है। रोहित रीड कर बेटा, रीड करना प्लीज।
106. Right of private defense against deadly assault when there is risk of harm to innocent person. If in the exercise of the right of private defense against an assault which reasonably causes the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extends to running of that risk. Illustration read करो. A is attacked by a mob who attempt to murder him. He cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob, and he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. A commits no offense if by so firing he harms any of the children. बेटा इसमें कंडीशंस लिखिए. कंडीशंस लिखिए. Right of private defense. Right of private defense extends to causing risk of harm, extends to causing risk of harm to innocent persons if the following conditions are fulfilled. If the following conditions are fulfilled. First, reasonable apprehension of death. Reasonable apprehension of death. जिसने इनोसेंट लोगों की लाइफ को रिस्क पहुंचाया है उसे एप्रीहेंशन होनी चाहिए डेथ की. सेकंड, that person cannot effectually exercise that right, cannot effectually exercise that right. Third, without risk of harm to an innocent person, without risk of harm to an innocent person. अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, इवन आप इनोसेंट पर्सन को अगर हार्म पहुंचाते हैं while exercising right of private defense, वो भी उसमें भी आप प्रोटेक्टेड हैं. पहला, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होनी चाहिए. दूसरा, इफेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं कर सकते राइट. थर्ड, विदाउट रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन. तो वहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स इवन टू कॉजिंग रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन. हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछिए. कोई डाउट है तो पूछिए. हम सेकंड समझा दो. सेकंड बेटा, कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी के पीछे ग्रुप ऑफ 20 पीपल भाग रहे और 20 लोगों के हाथ में, किसी के हाथ में सॉर्ड है, किसी के हाथ में आयरन चेन है, किसी के हाथ में पिस्टल है और वो उसे पकड़ना चाहते हैं. डेडली वेपन्स उनके हाथ में. जो आदमी आगे भाग रहा है, ही इज हैविंग पिस्टल. और जब उसने पीछे देखा तो वो 20 लोग क्योंकि सड़क पर भाग रहे हैं, तो अगर वो अपने आप को डेडली असॉल्ट से प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता बिना इनोसेंट लोगों की लाइफ को रिस्क में डाले. जो भी कोई सड़क पर होगा उसकी लाइफ को रिस्क होगा अगर वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है. तो लॉ कहता है अगर ऐसा डेडली असॉल्ट है जहां वो ऐसा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इफेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लॉ कहता है वो इस रिस्क को ले सकता है व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ठीक है प्लीज? ठीक है यस बेटा? मैम. यस मैम. कुछ पूछने हैं आपने? बेटा डाउट है तो अगर पूछिए, अदरवाइज वन बाय वन मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ. जितने भी प्रिंसिपल्स हमने किए हैं आपने उनको अप्लाई कर कर इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने. इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने.
इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। मुक्ति बेटा, ये आप बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। Accused has taken debt from the deceased who was an expert of witchcraft. एक प्रिंसिपल डेटर है और एक क्रेडिटर है। तो जो प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से लोन लिया हुआ है और जो क्रेडिटर है he was an expert in witchcraft, और प्रिंसिपल डेटर को लगता था कि वो उसे मारने वाला है। जो क्रेडिटर है वो आया पैसे लेने के लिए और जो हमारा प्रिंसिपल डेटर है उसने उसको मार दिया। हाँ जी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा या नहीं होगा? मैम नहीं होगा उसको प्राइवेट डिफेंस का राइट, क्योंकि मैम उसको मतलब एक गलत फहमी थी उसको कि हाँ उसको मारने वाला है। तो हाँ जी, शगुन बताएगी बेटी, क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा या नहीं? नहीं होगा मैम, क्योंकि एक्चुअल में उसने पहले से लोन भी ले रखा था, तो उसने जानबूझ के उसको मारा होगा। ओके, आंसर तो ठीक है, रीजन गलत है। रीजन गलत है। हाँ जी हरलीन, मैम वो यस बोलो बेटा। मैम पूछ लो, रीजन नहीं बता रहा था मैं तो। रीजन बोलो बेटा, फिर बोलो। मैम उसको पास पहले से अप्रीहेंशन थी तो वो पब्लिक अथॉरिटीज को रीच कर सकता था। बेटा एप्रीहेंशन विद किसी रियल अथॉरिटी होनी को। चाहिए। अगर आप अपना दिमागी घोड़ा ज्यादा दौड़ाओगे, अब मैं ही एप्रीहेंड कर लूं कि रोहित आकर मुझे मारने वाला है, तो अब ऐसी एप्रीहेंशन का कोई इलाज नहीं है। एप्रीहेंशन रीजनेबल होनी बहुत जरूरी है। एप्रीहेंशन रीजनेबल होनी बहुत जरूरी है। बेटा वन लाइनर लिख लीजिए, वन लाइनर्स लिख लीजिए। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड। वन लाइनर लिख लीजिए। फर्स्ट, डूइंग act before reasonable apprehension of danger. Doing act before reasonable apprehension of danger. No defense would be available. No defense would be available. No defense would be available. हाँ जी, फैक्ट सुनिए अब ध्यान से। सेकंड केस के फैक्ट सुनिए। एक आदमी हाईली इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में चल रहा है और एक पासर बाय है, उसने कहा वाई आर यू मूविंग विद योर चेस्ट सो हाई। उसका कहने का मतलब था पासर बाय का कि एक तो इतना पीकर घूम रहा है और ऊपर से ऐसा उसने ऐसे अपनी चेस्ट ब्रॉडन किया हुआ है जैसे पता नहीं कहां का ये युद्ध जीत कर आए। जो इंटॉक्सिकेटेड आदमी था उसने उसको ब्लो दे दिया, उसने हिट कर दिया पासर बाय को। जो पासर बाय है उसने स्पीयर ब्लो दिया जिसकी वजह से आदमी की डेथ हो गई। हाँ जी, अब आप बता दीजिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है या नहीं है? बेटा केस सुन लीजिए। ए, एक इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में आदमी है हु इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। जो बी है, अ पासर बाय, उसने फिल्दी लैंग्वेज यूज की। जो ए है उसने उसे ब्लो दिया, हार्ड ब्लो दिया। जो बी है
उसने उसे स्पीयर ब्लो दिया एंड द मैन डाइड। अब आप मुझे बता दीजिए, जो इसमें एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड कौन है इस केस में? पासर में पासर Intox- पासर बाय का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा या नहीं होगा? होगा मैम, क्यों होगा बेटा? बिकॉज ब्लो तो दिया ही था ना इंटॉक्सिकेट मैम। वो blow उसको थोड़ा थ्रेट हुआ कि वो आया है उसके पास, तो शायद उसको वो नहीं हार्म होगा, करेगा। मैम नहीं, इंटॉक्सिकेट नहीं होगा। जब पासर बाय ने उसको कमेंट पास किया तो ब्लो तो उसके कॉन्सिक्वेंस में दिया है ना? नहीं मिलेगा मैम। मैम नहीं मिलेगा मैम। रीजन बताइए बेटा, रीजन। मैम ना तो एप्रीहेंशन थी उसके पास, वो खुद गया उसके पास कमेंट करने। बेटा क्या किसी से बात करना कोई जुर्म है? मैम उसे पता था ये इंटॉक्सिकेटेड है, और उस टाइम वो प्रोवोक करने वाली बात हुई ना, वो तो फिर, और उसे कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन तो था नहीं। किसको? जो पासर बाय था, एज अ रिप्लाई उसने इंटॉक्सिकेटेड पर्सन ने उसे ब्लो दिया ना। आपको पता है सेक्टर 15 में ना गार्डन है एक, वहां पर ना जो कपल्स हैं वो बैठे रहते हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कपल्स हैं वो अपना एंजॉय करते हैं और जो सिंगल्स हैं वो कपल्स को देख के एंजॉय करते रहते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एज्ड लोगों को है। वो वहां पर वॉक करते हैं, वो कहते हैं सारा ही इन्होंने एनवायरनमेंट खराब कर दिया है इस गार्डन का। कई जो वहां के मैनेजमेंट कमेटी में है, इवन वो कई बार कपल्स को जाकर टोक भी देते हैं कि आप यहाँ पर ऐसे मत बैठिए, ये पब्लिक प्लेस है, ये इनडिसेंट लगता है। क्या वो कुछ गलत कर रहे हैं बेटा? फॉरबिडन नो बाय लॉ मैम। है पब्लिक प्लेस पे। हाँ जी, तो आपने जब कहा कि उसको कहने की जरूरत नहीं थी, तो क्वेश्चन राइज होता है। आप सब छोड़िए, आप बताइए जिसने पासर बाय ने मारा है, क्या उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. क्यों? I'm 98 में। बेटा प्रिंसिपल लिख लीजिए, प्रिंसिपल लिख लीजिए, प्रिंसिपल लिख लीजिए। इसमें यूज ऑफ फिल्दी लैंग्वेज, यूज ऑफ फिल्दी लैंग्वेज does not amount to an offense. Use of filthy language does not amount to an offense. तो जो intoxicated आदमी ने blow दिया, that blow is not given in exercise of right of private defense. Rather, intoxicated man has done something offending to the other person, and जो passer by था, he is having reasonable apprehension of death, और इसलिए उन्होंने कहा इस आदमी को जो एक्यूज्ड है उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। क्लियर है प्लीज? क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए बेटा। एक ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर ही वॉज ड्राइविंग नेग्लिजेंटली, और इस नेग्लिजेंट ड्राइविंग से एक आदमी की डेथ हो गई। डेथ होने की वजह से वहां पर ह्यू एंड क्राई मच गया, लोगों का जमावड़ा जमा हो गया कि इस ड्राइवर को लेसन सिखाना है। सड़क पर गाड़ी उतार लेते हैं और ड्राइव करनी आती नहीं है। तो वो उस ग्रुप से, उस जो भी वहां पर लोग इकट्ठे हुए, वो इतना ज्यादा डर गया कि उसने ट्रक को ही चला दिया, जिससे कि एक की तो डेथ हुई हुई, बाद में 11 और लोगों की डेथ हो गई। और उसने प्ली लिया। जो सोशल रिएक्शन था उस टाइम पर, उसकी वजह से he was apprehending death. Therefore, I should be given benefit of
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हाँ जी, आपने बताना है डिफेंस अवेलेबल होगा या नहीं होगा और क्यों। मैम नहीं होगा, बट रीजन कंफर्म नहीं है। जो भी है बताइए, जो भी आपको लगता है वो बताइए। मैम बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ रॉन्ग डूअर मैम, जब उसने एक्सीडेंट में डेथ कॉज की है। ओके, और हिट एंड में भी आ जाएगा मैम, बिकॉज ऑलरेडी डेथ है। एंड हाँ, ये हो सकता था वो वहां से भाग सकता था, बट ट्रक अगेन। आप मुझे ये बता दीजिए, एक्सीडेंट वाले को भाग जाना चाहिए स्पॉट से? नो मैम, हिट एंड रन का केस डलेगा मैम उस पे, अगर वो भागता है तो। नहीं तो क्या करना चाहिए? लॉ के अथॉरिटीज मैं- अथॉरिटीज को रीच करना होता है। मैम, और कम से कम जो पर्सन है उसको हॉस्पिटलाइज कराएं। यस आप हो गए। बेटा, ये इसका रीजन है जो आपने बोला है, ये रीजन है क्योंकि लॉ कहते हैं आपका मोटर व्हीकल्स एक्ट टाइमली मेडिकल एड दिलवानी है विक्टिम को, और आपने एक लीगल मैंडेट को डिफीट किया है। क्यों? अगर वो ऐसे बेनिफिट देने लगे देन एवरी ड्राइवर विल गेट राइट कि एक्सीडेंट करे और स्पॉट से भाग जाए, क्योंकि सोशल जो रिएक्शन है वो एप्रीहेंड कर रहा है उसकी डेथ कॉज हो सकती है। प्रिंसिपल लिख लीजिए, प्रिंसिपल लिख लीजिए। आरओपीडी, आरओपीडी is not available against statute, is not available against statute. One of the mandate of motor vehicles act is timely medical aid to victim in accident cases. Timely medical aid to victim in accident cases. Therefore, ROPD will not be available. ROPD will not be available as it will give excuse. It will give excuse to every driver causing accident to run away from the spot, to run away from the spot. बेटा आप मुझे बता दीजिए नेक्स्ट। एक आदमी ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और बिना पेमेंट किए वहां से चल दिया। तो जो ये सब हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सब हैं, ये अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखते हैं। मैनेजर ने अपने गार्ड्स को भेजा कि इस आदमी का पीछा करो। आदमी ने उन्हें वार्निंग दी कि मेरे पीछे मत आओ, अदरवाइज मैं आपको नुकसान पहुंचा सकता हूं। बट दे कॉन्टिन्यू टू फॉलो हिम, और उन्होंने उसको पकड़ लिया। पर उस आदमी ने गार्ड्स को स्टैब वाउंड दे दिया, एक गार्ड को स्टैब वाउंड दे दिया, और उसने कहा आई एम एक्सरसाइजिंग माई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अदरवाइज इन लोगों ने मुझे कन्फाइन कर लेना था। हाँ जी बताइए, क्या उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम ऐसे तो सभी नहीं भागने लग जाएंगे खाना खा के। कारण बताओ ना, क्यों अवेलेबल नहीं होगा? जो ओनर था रेस्टोरेंट का
उसका जो एक्ट है वो लीगल है या इलीगल है? लीगल है। लीगल है। और जो उसके एम्प्लॉइज हैं जो कि प्राइवेट पर्सन्स हैं, उनका एक्ट लीगल है या इलीगल है? लीगल है मैम। मैम लीगल है। सीआरपीसी में कोई प्रोविजन है इसके लिए? मैम ओनली वो उसको बोल सकते हैं पेमेंट के लिए, बट हम थोड़ा ना कर सकते हैं। हाँ जी, सेक्शन 43 क्या कहता है? अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन कहता है ना। Yes, इस ma'am. केस यस प्रिंसिपल लिख लीजिए, आदमी को अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज वो अनलॉफुल एक्ट कर रहा है। हाँ जी, इसमें लिखिए आरओपीडी इज नॉट अवेलेबल, आरओपीडी is not available against unlawful acts under section 43 of CRPC. Even private persons can make arrest. Therefore, act of employee मैम सेक्शन प्लीज। 43 beta 43, section 43 of CRPC, even private person can make arrest. Therefore, act of employee was lawful. Thus, no ROPD would be available. No ROPD would be available. No ROPD would be available. आप मुझे बता दीजिए, नेक्स्ट केस सुनिए, बता दीजिए। A was committing rape on B's daughter. Daughter was minor and consenting party. B attacked and caused death of A. मैम प्लीज रिपीट करेंगी थोड़ा। A was committing rape on B's daughter. Daughter was minor and consenting party. B attacked and caused death of A. मैम मिलेगा। Reason मैम बताइए। मिलेगा। Reason मैम बताइए। कि मैम वो मैम रेप of- के केस में डेथ भी कॉज कर सकते हैं। Yes? नहीं, मैम मिलेगा। reason बताइए। मैम ओके, आपने death बिल्कुल भी ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला। हाँ जी, कौन सा सेक्शन है ये? 100। 100 में वो डेथ कॉज कर सकता है। हाँ जी, Yes. यस। यहाँ पर बेटा सबसे बड़ा जो ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो लड़की है वो माइनर है। माइनर का कंसेंट हार्डली मैटर्स, क्योंकि Yes. आपका सेक्शन 90 कहता है जो 12 साल से छोटे का कंसेंट है दैट डज नॉट अमाउंट टू एन कंसेंट। तो यहाँ पर जो रेप है दैट अमाउंट्स टू रेप, एंड इन केस ऑफ रेप इवन डेथ ऑफ द असेलेंट कुड बी कॉज्ड, इसलिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा। इसलिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा। क्लियर है प्लीज? Right. Yes. ma'am. क्लियर है? यस। आप सुनिए, 3 पार्टीज हैं, हस्बैंड, वाइफ और वाइफ्स ब्रदर। जो हस्बैंड एंड वाइफ है they are not having good relations. Therefore, wife started living with her brother. Husband came to take her away. At her refusal, he started beating and dragging her. Brother stabbed the husband. मिलेगा मैम इसमें भी। हाँ जी, रीजन बताइए। मैम ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट कहाँ है? वो तो ग्रीवियस हर्ट मैम आपने स्टैबिंग बोला ना आपने। बेटा, स्टैब तो हस्बैंड को किया है। मैम अगेन मैम नहीं रिपीट। मिलेगा। मैम अगेन एंड एक अगेन बार रिपीट कर दो मैम, एक बार।
बेटा हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है, वाइफ ने अपने ब्रदर के साथ रहना स्टार्ट कर दिया, हस्बैंड ब्रदर के घर पर आया और वाइफ को उसके बालों से ड्रैग करना स्टार्ट कर दिया टू टेक हर अवे, ब्रदर ने उसको पकड़ा और स्टैब कर दिया एंड हस्बैंड डाइड। क्या ब्रदर को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा? यस यस मैम। मैम होगा मैम। मैम प्रोटेक्शन ऑफ अदर्स प्रॉपर्टी एंड बॉडी आल्सो, तो वो दूसरे की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था। क्या डेथ कॉज कर सकता है? मेन तो क्वेश्चन ये डेथ है। नहीं कॉज, नहीं यस नहीं मैम, मैम। डेथ नहीं, रोकने के लिए कुछ और भी रोका जा सकता था, डेथ नहीं कॉज। नहीं, डेथ कॉज कर सकता है, आंसर इसका दीजिए। नो बट नो मैम। कंसिक्वेंटली अरे जैसा बेटा था तो एबडक्शन है, इट इज अ केस ऑफ एबडक्शन, डेथ कॉज करना भी जस्टिफाइड है। आपके जो सेक्शन 100 है उसमें एक सिचुएशन है किडनैपिंग और एबडक्शन, अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन है किडनैपिंग या एबडक्शन की एंड इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ एबडक्शन, क्लियर है प्लीज? तो यहाँ पर इवन डेथ कॉज करना दैट इज जस्टिफाइड, दैट इज जस्टिफाइड। बेटा अब आप डाउट पूछिए अगर आपको कोई डाउट है। मैम ये इसी इसी जो लास्ट एग्जांपल में एबडक्शन में वो हस्बैंड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एबडक्शन नहीं मानी जाएगी, रिलेशनशिप विल नॉट मैटर। बेटा कुछ नहीं होता, अगर एक हस्बैंड है जो अपनी लिमिट एक्सीड कर रहा है एंड ट्रीटिंग अ वाइफ इन सच अ मैनर, तो वो एक्यूज्ड भी हो सकता है, क्योंकि हस्बैंड ही है जो वाइफ के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसको जला भी देता है, तो हस्बैंड एक्यूज्ड हो सकता है। ठीक है मैम please? इन केस ऑफ एनी अदर रिलेशनशिप अदर देन हस्बैंड एंड वाइफ। बेटा हमने क्राइम में रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज देखते हैं, अगर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप कॉर्डियल होते तो वो वहां पर क्यों आता? इंस्टेड ऑफ मेकिंग एफर्ट्स फॉर रिकंसिलिएशन, वो तो अपनी खुंदक निकाल रहा है वहां आकर, तो उसने अपना माइंड वो प्रिपेयर होकर आया कि मैंने वाइफ को यहां से लेकर जाना है बाय हुक और क्रुक, तो इसलिए दैट इज एबडक्शन। ठीक है प्लीज? मैम और एक लास्ट क्वेश्चन, अगर माइनर के केस में ऐसा हो, वो विदाउट एनी कंसेंट उसे लेके जाए तो भी उसे बेटा वो किडनैपिंग के किडनैपिंग हो ऊपर। जाएगा, वो किडनैपिंग हो जाएगा, ठीक है मैम। वो किडनैपिंग हो जाएगा ना। जी। और अगर गार्डियन कंसेंट दे रहे हैं कि ले जाओ फॉर इलीगल पर्पस, फिर वो एबडक्शन हो जाएगा। ठीक है ओके मैम। यस, यस। वो हमें देखना पड़ेगा। मैम लास्ट वाले केस में ग्रेटर हार्म कॉज की है उसने। बेटा जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए, दीज आर ओनली 2-3 फैक्ट्स। रियलिटी में ये केस है विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। जो प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव में वो ये है कि आपको सिर्फ 2-3 फैक्ट्स बताए होते हैं और ऑप्शन दी होती है, जो उस सिचुएशन की ग्रेविटी है वो उस सिचुएशन में अगर आप पूरे केस को पढ़ोगे तब आप मेक आउट कर सकते हो। अब आपने बोला कि हार्म कॉज्ड ज्यादा है, अरे ज्यादा कैसे है जब आपको लॉ ने ऑथराइज किया है? जब आपका जो सेक्शन 100 है, अगर आप सेक्शन 100 को रीड करोगे अपने बेयर एक्ट में से, तो जो आपका सेक्शन 100, एक मिनट बेटा, आपका सेक्शन 100 कह रहे हैं एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एबडक्शन, तो इसमें ये नहीं कहा कि आपने दूसरे आदमी को मार रहे। अगर आपको लगता है कि ऐसा असॉल्ट है कि आप उसे एबडक्ट कर सकते हैं, तो अगर आप एग्रेसर की डेथ भी कॉज कर देते हैं, लॉ ने कहा है कि वो जस्टिफाइड है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता जब लॉ ने उसको जस्टिफाई किए। लॉ ने उसको जस्टिफाई किए बिकॉज देयर माइट नॉट बी एनी अदर मोड टू प्रोटेक्ट हिज सिस्टर। जब आप फैक्ट्स को टोटलिटी में पढ़ोगे तब आप ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को, ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को मेक आउट कर सकते हैं, मेक आउट कर सकते हैं। ठीक है प्लीज? हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछिए। मैम एक क्वेश्चन था। बोलिए। A attempts to pull Z's nose. Z in the exercise of the right of private defense lays hold of A to prevent him from doing so.
A is moved to sudden and violent passion in consequence and kills Z. Can A plead private defense? बेटा फिर से रीड कर बेटा. A attempts to pull Z's nose. A Attempts to pull Z's nose. अच्छा Z- ओके. Z in the exercise of right of private defense lays hold of A to prevent him from doing so. A is moved to sudden and violent passion in consequence and kills Z. तो बेटा ए तो खुद एक्यूज्ड है ना. बेटा Yes, ए तो ma'am. एक्यूज्ड है ना, जिसने स्टार्ट किया था इस उसको ट्रांजैक्शन को. Yes, ma'am. और जब उसने थ्रेट किए तो दूसरे आदमी ने उसका होल्ड किया अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए. ठीक है ना प्लीज. Yes, ma'am. और उसने फिर उसको मार दिए. उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा. निधि आपने क्वेश्चन पूछा था क्लास में. बेटा तूने क्वेश्चन पूछा था क्लास में, पूछा था ना एक. यस मैम पूछा था. वो इसके फैक्ट से मैच करता है. बेटा उस दिन मैंने तुझे प्रॉमिस किया था कि रीजन नहीं है, रीजन होना चाहिए. रीजन है ये एक डिसाइडेड. बेटा आप एक मिनट, मैं आपको केस ही निकाल रही हूं. सिर्फ 1 मिनट बेटा. बेटा 1 मिनट से. बेटा इस केस का नाम नोट कर लीजिए. इस केस का नाम नोट कर लीजिए. दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. बेटा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ना. यस मैम. Yes, ma'am. बेटा इस केस का नाम लिख लीजिए. दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2010 सुप्रीम कोर्ट. 2010 सुप्रीम कोर्ट. बेटा केस एक लैंडमार्क जजमेंट है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को डिस्कस करते हुए जो सारे अर्लियर प्रेसिडेंट्स थे उनको डिस्कस किया और उन्होंने इस राइट का स्कोप डिस्कस किया है. आपका जो पैराग्राफ 48 है बेटा उसको रीड करो. इसको रीड करो. रोहित रीड कर बेटा. 58. The following principles emerge on scrutiny of the following judgments. Yes. First, self-preservation is the basic human instinct and is duly recognized by the criminal jurisprudence of all civilized countries. All free, democratic, and civilized countries recognize the right of private defense with certain reasonable limits. बेटा Second. सेकंड इंपॉर्टेंट है. जो बेटा आपने क्वेश्चन पूछा था, रीजन उसका सेकंड है. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल only to the one who is suddenly confronted with the necessity of averting an impending danger and not of self creation. अगर आपने उस सिचुएशन को क्रिएट किया है और बाद में आप खुद ही वहां पर डेंजर दूसरे आदमी को मार रहे हैं, that will not be justified by law. तो बेटा जो तूने क्वेश्चन पूछा था, रीजन उसका ये है, बिल्कुल ठीक था. जो आपका उसमें आंसर मार्क था, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल, और रीजन ये था बिकॉज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली टू वन हु इज सडनली कन्फ्रंटेड विद द नेसेसिटी of averting an impending danger
and not of self creation. इन केसेस में जो आपने पूछे, the accused person has self created that situation, इसलिए उसको right of private defense available नहीं होगा. बेटा थर्ड से रीड करना स्टार्ट करो, थर्ड से रीड करना स्टार्ट करो. A mere reasonable apprehension is enough to put the right of self-defense into operation. In other words, it is not necessary that there should be an actual commission of the offense in order to give rise to the right of private defense. It is enough if the accused apprehended that such an offense is contemplated and it is likely to be committed if the right of private defense is not exercised. Yes, आगे रीड Fourth, करो. the right of private defense commences as soon as reasonable apprehension arises, and it is coterminous with the duration of such apprehension. जब तक वो Fifth, डेंजर या एप्रीहेंशन रहेगा, राइट रहेगा. मोमेंट एप्रीहेंशन इज ओवर, राइट विल आल्सो बी ओवर. आगे रीड कर बेटा, मैम तो आगे रीड कर बेटा. यस, fifth, it is unrealistic to expect a person under assault to modulate his defense step by step with any arithmetical exactitude. इसका मतलब हम उस जो पर्सन अंडर डेंजर है, हम उससे ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो पहले देख ले 1 + 1 2 है या 4 1 + 1 5 है. जब आप अंडर इमरजेंसी है तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लॉ भी इसको ध्यान में रखेगा. आगे रीड कर बेटा, आगे रीड करो. 1 मिनट बेटा, अब रीड करो. 6 Sixth ऊपर चला गया. नहीं, ठीक है, मैंने कर दिया. ठीक. In private defense, the force used by the accused ought not to be wholly disproportionate or much greater than necessary for protection of the person or property. Yes. Next. Seventh, it is well settled that even if the accused does not plead self-defense, it is open to consider such a plea if the same arises from the material on record. Yes. Eighth, the accused need not prove the existence of right of private defense beyond reasonable doubt. Yes. Ninth, the Indian Penal Code confers the right of private defense only when that unlawful or wrongful act is an offense. A person who is imminent and reasonable danger of losing his life or limb may, in exercise of self-defense, inflict any harm, even extending to death, on his assailant, either when the assault is attempted or directly threatened. Yes. बेटा आप ये प्लीज, जजमेंट आपके पास, आप खोल लेना और आप इसका पैराग्राफ 58 आपने ऑब्जेक्टिव के लिए जरूर पढ़कर जाना है. कई बार रीजनिंग आपको बेयर एक्ट में नहीं, इन प्रिंसिपल्स में होती है, तो आप इसको मार्क कर लेना. सिर्फ आप 1 मिनट वेट कीजिए, एक और चीज हम डिस्कस करने वाले हैं. वेट कीजिए मैम. तो उस क्वेश्चन में जिस ए और बी थे, एक ने शॉट किया था उसको और दूसरे ने, बी जो था, उसने उसके शॉट का जवाब दिया था. उसने ए ने फिर से उसको मारा. यस, आप देखिए, ए ने शॉट किया. जब आपने किसी को शॉट किया वो बच गया, बट उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि वो उसकी डेथ कॉज कर सकता है. उसने एक्सरसाइज किया अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और बी की तरफ शूट कर दिया. बी ने क्या करा, बी ने जवाबी कार्रवाई में फिर से क्या कर दिया, शूट कर दिया और ए की डेथ कॉज कर दी. नहीं मैम, उसके बाद ए ने दोबारा मारा बी को, ए ने वापस से मारा बी को और उसके बाद बी की डेथ हो गई है. तो वो बोलते कि ए के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है या नहीं है. 1 मिनट बेटा, मैं क्वेश्चन ही चेक कर लेती. 1 मिनट. बेटा इसमें लिखा हुआ है, A fires at B with the pistol, B return fire at A. Now A kills B by another shot on his neck. In court, A pleads private. तो ठीक तो है बेटा, मैं ठीक तो बोल रही थी आपको, ठीक तो बोल रही थी. A ने फायर किया B पर,
बी ने फिर फायर किया और फिर A ए ने पर। फायर कर दिया, तो ठीक तो है, नो हाँ जी, राइट A ऑफ, ने। हाँ तो ठीक तो है फिर तो उसने A को कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा बेटा, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज क्रिएटेड दैट सिचुएशन। और जो दूसरी पार्टी थी, दूसरी पार्टी अपना लॉफुल राइट एक्सरसाइज कर सकती थी। तो यहाँ पर जो बी था, बी वॉज हैविंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसमें ए के पास कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, बिकॉज जिस सिचुएशन में ये राइट एक्सरसाइज किया है, ही हिमसेल्फ हैज क्रिएटेड दैट सिचुएशन। क्लियर है प्लीज? यस मैम, अगर B उसे मार देता मैम तो B को मिलता ना आरओपीडी? बिल्कुल मिल जाता बेटा, वो सेक्शन 100 में ही कवर हो जाता, बिकॉज उसमें कॉजिंग ओके डेथ मैम। जरूरी नहीं है। अगर आपके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि डेथ कॉज हो सकती है, आप दूसरे आदमी की डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है प्लीज? थैंक यू मैम। ओके बेटा, सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिए, हम एक और चीज डिस्कस करने लगे। बेटा सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिए, मैं अपना डॉक्यूमेंट ढूंढ रही हूँ, सिर्फ 1 मिनट। बेटा ये कुछ केसेस हैं रिलेटिंग टू राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। रोहित फर्स्ट केस रीड कर बेटा, फर्स्ट केस रीड करना। सुकुमारन वर्सेस स्टेट, रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2019। बेटा रीड करना। The Supreme Court in this case acquitted the Tamil Nadu forest ranger who was accused of killing a sandalwood smuggler in certain forest area by shooting him. The trial court had sentenced him to life imprisonment for murder. However, the Madras High Court reduced the term to 5 years. In the appeal to the apex court, the accused contended that he had threat to his own life and that of his driver from the deceased smuggler. Acquitting the accused, the court observed the right embraces the protection of property, whether one's own or another person's, against offenses like theft, robbery, mischief, and criminal trespass. Mere a reasonable apprehension is enough to put the right of self-defense into operation. In other words, it is not necessary that there should be actual commission of the offense in order to give rise to right of private defense. The appellant, having seen the suspicious movements of the deceased party in the forest area,
rightly formed an opinion that the deceased party was moving around in the forest to smuggle the sandalwoods. Therefore, he was entitled to chase the deceased party and apprehend them for being prosecuted for commission of offense punishable under the forest laws. Indeed, that was his duty. Also, there was no motive attributed to the appellant towards any member of the deceased party. तो इसलिए उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल हो गया था। बेटा दर्शन सिंह का केस पढ़ो, ये रहने दो, ये वही केस है जो भी हमने रीड किए, इसमें 10 वो गाइडलाइंस हैं, ये आप रेफर कर लेना। बेटा केशोराम का केस पढ़ो, केशोराम। The appellant was convicted under section 353, 332, 333 of the Indian Penal Code and was sentenced accordingly. The prosecution case was that the appellant obstructed three inspectors and a peon of the Delhi Municipal Corporation when they went to seize the appellant's buffalo in the discharge of their duty to realize the milk tax from him, and struck one of the officers on the nose with the result that it bled and was found fractured. The main contention of the appellant was that the attempt to realize the arrears of milk tax and recovery charges was illegal because no demand notice under section 154 of the act was served on the appellant, and therefore he had right of private defense. The prosecution relied on section 99 Indian Penal Code, which provides that there is no right of private defense against an act of public servant done in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law. Further, according to the prosecution, section 161 of the act empowered the inspector of the corporation to seize and remove the appellant's buffalo for non-payment of tax, and the section gave them an overriding power to resort to size and detention of the animal. Therefore, according to the prosecution, the appellant was guilty of offences charged. The court held that an immunity under section 99 of the IPC can be claimed by a public servant if he acted in good faith under the color of his office, even though the legality of the act could not otherwise be sustained. Yes, इसलिए उन्होंने कहा कि जो इम्यूनिटी है वो अवेलेबल तब होगी if he acted in good faith under the color of his office, even though the legality of the act could not be otherwise be sustained. Next read कर बेटा, next read कर। Yogendra Moraji versus State, AIR 1980, Supreme Court 660. The Supreme Court discussed in detail that the extent and the limitations of the right of private defense of body. One of the aspects emphasized by the court was that there must be no safe or reasonable mode of escape by treat for the person confronted with an impending peril to life or of grave bodily harm except by inflicting death on the assailant. This view seems in contradiction to the principle that the law does not encourage cowardice on the part of one who is attacked. But another viewpoint is that this retreat theory, in fact, is an acceptance of the English common law principle of defense of body or property, under which the common law court always insisted to look first as to whether the accused could prevent the commission of crime against him by retreating. Yes, कि अगर आप वहां से भागकर सिचुएशन में स्टेटस को मेंटेन कर सकते थे तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है। बेटा नेक्स्ट रीड कर मोहिंदर पार जोली, मोहिंदर पार जोली वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। Workers of a factory threw brickbats from outside the gates, and the factory owner, by a shot from his revolver, caused the death of a worker. It was held that this section did not protect him as there was no apprehension of death or grievous hurt. Yes, only right Conclusion. of, yes, बस छोड़ दो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इसलिए अवेलेबल नहीं हुआ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इसलिए अवेलेबल नहीं हुआ। बेटा अब आप कोई डाउट है तो पूछिए, अब आप कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ जी, टॉपिक्स लिखिए जो आपके अब रहते हैं, टॉपिक्स लिखिए। फर्स्ट, डिफेमेशन,
defamation, defamation. Second, offenses against state, offenses against state. नेक्स्ट लिखिए offenses against public justice, offenses against public justice. बेटा डिफेमेशन में कवर होगा सेक्शन 499, सेक्शन 499 एंड 500. हाँ जी, डिफेमेशन के बाद कौन सा बोला बेटा? ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट. हाँ जी, इसमें आप लिख लीजिए, सेक्शंस लिख लीजिए 121 to 130. नेक्स्ट लिखिए ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज 493 to 498. नेक्स्ट लिखिए क्रुएल्टी बाय हस्बैंड, क्रुएल्टी 498 कैपिटल ए, 498 कैपिटल ए. उसके बाद था ऑफेंसेस अगेंस्ट, यस, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड बोला आपने? क्रुएल्टी लिख दीजिए बेटा, हस्बैंड रिलेटिव सारे कवर हैं, क्रुएल्टी लिख दीजिए. नेक्स्ट लिखिए ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस 191, 192, 191, 192. हाँ जी, इसके साथ हमारा आईपीसी वाइंड अप हो जाएगा, इसके साथ हमारा आईपीसी वाइंड अप हो जाएगा बेटा. आज का लेक्चर हम यहीं पर ओवर कर रहे हैं. कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा विद डेफेमेशन, डेफेमेशन स्टार्ट करेंगे. प्लीज जो भी आपने टॉपिक्स लिखे हैं उनकी इमेज क्लिक कर कर ना आप अपने ग्रुप में सेंड कर देना. प्लीज जो टॉपिक्स अभी लिखे हैं इमेज क्लिक कर कर आप ग्रुप में सेंड कर देना. अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कल पूछ सकते हैं. ठीक है प्लीज? थैंक यू मैम. ठीक है बेटा, गुड नाइट बेटा. Thank you, ma'am. Thank you बेटा, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट.